Friends, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain class 12 Flamingo prose number 3, that is the deep water. And this very interesting motivational inspirational story is written by William C. Douglas. This story is about a triumph over the fear, victory over the fear. So before going through this very interesting story, let's come to know about that who is William Douglas. So he was born in Maine, Minnesota, and after graduating with Bachelor of Arts in English and Economics, he was born in Minnesota, a state in United States, and he had a Bachelor of Arts and Economics degree. He spent 2 years of teaching high school in Yakima. He spent his initial year as a teacher. Then, however, he got tired of this and decided to pursue a legal career. And after being as a teacher for 2 years, he then go for the legal career, that is he started to being an advocate. Then he met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. And yes, at the Yale University, he met Franklin Roosevelt, ex-United States President at Yale University, and after that he became an advisor to the president. When Franklin Delano Roosevelt was the United States President, then William C. Douglas was his advisor, and Douglas was a leading advocate of the individual rights. डॉगलस क्या थे? इंडिविजुअल राइट्स के बहुत ज़्यादा एडवोकेट पैरोकार थे, एडवोकेट थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 30 years and remained the longest serving justice in the history of the court. And in 1975 he retired, and he has a record of longest serving justice in the history of the court. यूनाइटेड स्टेट में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे हैं. ओके. The following excerpt is taken from the Of Man and Mountain by William O. Douglas. और ये कहाँ से लिया गया? William O. Douglas जो of Man and Mountain. And इस स्टोरी से it reveals how a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. कैसे एक यंग बॉय, जब छोटे थे विलियम डॉगलस, तो कैसे एक स्विमिंग पूल पे डूबते डूबते रह गए. एंड देन इन दिस स्टोरी ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयरफॉर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. और इस स्टोरी में वो कैसे स्विमिंग पूल पे डूबते डूबते मतलब बचे बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो कैसे उस डर पर काबू पाए, उस बाद में जीते. एंड नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर. और पूरी स्टोरी को पढ़ते हुए आप एक चीज़ गौर करिएगा स्टूडेंट कि कैसे आत्मकथा को इसमें दिखाया गया कि कैसे फियर पर जीत पाना, एक प्रसिद्ध आदमी ने कैसे अपने फियर पर जीत पाई. स्टूडेंट इनकी एक और बहुत शॉर्ट स्टोरी है, द गर्ल विद द बास्केट. अगर इफ़ यू हैव अ इंटरेस्ट इन रीडिंग शॉर्ट स्टोरी, सो यू कैन गो थ्रू दैट. इन दैट गर्ल विद द बास्केट ही गिव्स अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सो विदाउट एनी फर्दर एडू स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लेसन को. So it had happened when I was 10 or 11 years old. यहाँ पे William O. Douglas is recounting his earlier years. So he said that incident took place when he was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. He decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. So there was a swimming pool at the YMCA, a club. We can say that Young Men Christian Association is the full form of YMCA student. In Yakima is the place. Then there was an opportunity to learn how to swim for William Douglas. The Yakima River was precarious. The river at the place Yakima, जो जहाँ नदी थी Yakima, was very precarious. बहुत भयावह नदी, बड़ी नदी थी. Mother continually warned against it. So mother of William Douglas continually warned against that key and kept fresh in mind the detail of each drowning in the river. And time to time her mother used to remind him that about the cases of drowning. लोगों के उसमें डूबने के, बहने के केसेस के बारे में वो बताती थी उनकी मदर. But the YMCA pool was safe. लेकिन जो YMCA का जो पुल था वो सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. वो लगभग यही माना जाता है कि एक छोर पर वो बिल्कुल 2 से 3 फीट ही गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरी तरफ वो 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. धीरे धीरे करके वो गहरा हो रहा था. जो पुल था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि एक ही बार गहरा था. धीरे धीरे करके वन स्टेप बाय स्टेप वो जो पुल था वो गहरा था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल. तो इन्होंने वाटर विंग्स इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड टू हेल्प फॉर स्विमिंग, तो उसमें कहा कि वाटर पुल पे गए. एंड आई हेटेड टू वॉक. This is a map of Yakima River, students. You can go through your NCERT book. Okay. So naked into it and show my skinny legs. So with these water wings, he just went to the swimming pool. एंड स्किनी मतलब यंग थे 10 और 11 ईयर्स के ओल्ड थे तो काफ़ी पतले थे.
बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो उन्होंने क्या हुआ, अपने जो अभिमान था, मतलब जो डर था उसको मतलब दबाया उन्होंने और वो गए। उनको यह था कि आई हैव टू लर्न दिस। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरू से ही मेरा कहीं ना कहीं जब भी मैं पानी में रहता था तो उससे मेरे को एक तरीके से दूर मतलब डर लगता था। इज द रीज़न इज दैट दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये कब हुआ, जब मैं 3 और 4 साल का था और मेरे जो फादर थे मेरे को कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए। ही एंड आई stood together in the surf. I hung on him, yet the waves knocked me down and swept over me. And then he and I stood together in the surf. सर्फिंग बोर्ड पे दोनों बैठे हुए थे, सर्फ कर रहे थे कैलिफोर्निया बीच पर। एंड वो उनके ऊपर थे विलियम डॉगलस। एंड तभी क्या हुआ कि एक वेव थी, एक लहर थी, वो उनके ऊपर पड़ती है और वो लहर उनको गिरा देती है। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और गिरने की वजह से वो पानी में चले जाते हैं। माई ब्रेथ वॉज गॉन, अनएबल टू ब्रीथ एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज 3 years old एंड आई वॉज फ्राइटेंड। फादर लाफ्ड। विलियम और डॉगलस डर चुके थे लेकिन फादर हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स टू द वेव्स। लेकिन कहीं ना कहीं एट दैट इंसिडेंट ओवर पावर्ड हिम, कहीं ना कहीं वो जो लहरों की वजह से, पानी की वजह से कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक डर बैठ गया था। ओके स्टूडेंट्स, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and state childish fear. So when he again started to learn the swimming then at the YMCA pool, then again that when he was 3 years old and that California beach incident again came into his mind. So but in a little while I gathered confidence, I paddled with my new water wings. जो नए वाटर विंग्स लिए थे, जो इक्विपमेंट लिए थे, जो पैरों पे लगा के उस पर तैरने के लिए सीखा जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी उसको पैडल कर रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे लड़के जैसा कर रहे थे उन्हीं को देख के मैं भी कॉपी कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने इसको 2 से 3 बार किया अलग अलग दिनों पे। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एज ईट इन द वाटर। और कहीं ना कहीं मैं अब ये करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, ही वॉज फीलिंग लिटिल बिट ईज। जो विलियम और डॉगलस थे वो अब उनको अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं ही स्टार्टेड टू लर्न द थिंग व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। व्हाट वाज दैट मिसएडवेंचर स्टूडेंट? सो आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। ही अगेन एट सर्टेन डे 2 or 3 days के बाद से एक बार पुल पर गए जहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह थी वो बहुत शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज द बाथटब। और जो बॉटम था वो बिल्कुल पूरा सफ़ेद लग रहा था, जैसे बाथटब होता है, बिल्कुल पानी के जो रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ही साफ लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, डर रहे थे अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर द अदर्स। तो मैं पुल के साइड पर बैठ गया, लोगों का इंतजार कर रहा था। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old. अभी मेरे को वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय हुआ ही नहीं था, तभी एक मतलब 18 साल का एक तगड़ा लड़का आता है वहाँ पे। He had thick hair on his chest. उसके चेस्ट पे बाल थे। He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. और बिल्कुल जो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, it was very good. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be tugged?" वो उस पर लड़का जो होता 18 साल का, वो विलियम डॉगलस से कहता है, हे पतले, उसको कहता है कि कैसा लगेगा अगर तुमको डुबो दिया जाए। With that he picked me up and tossed me into the deep end. और उसने क्या करा, उस लड़के, ये बात कहते ही लड़के ने उसको गोद में उठाया, विलियम और डॉगलस को, और सीधे जो दूसरा छोर था जो 9 feet डीप था उधर उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। और जैसे मैं बैठा हुआ था वैसे, जैसे उसने उठाया वैसे ही मैं पानी में गिरा। स्वॉलोड वाटर, जैसे ही पानी पाया मेरे गले के अंदर पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस इन द बॉटम, और सीधे मैं बिल्कुल पानी के अंतिम पुल के नीचे छोर पे चला गया। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट माई वेट्स। मैं डरा हुआ था लेकिन अभी होश में, मतलब इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं डर से अचानक से डर गया। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, लेकिन जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तब तक मैंने प्लान किया, When my feet hit the bottom, I would make a big jump. जैसे ही मेरा जो फीट है, जो पैर है, वो बॉटम में जाएगा, जैसे ही मतलब, तो क्या होगा कि मैं उस पर बिग जंप, उस पर जैसे ही मेरा पैर बॉटम पे फ्लोर पे टकराएगा, मैं क्या करूँगा, उस पैर के सहारे बिल्कुल एक बिग जंप लूँगा ऊपर। एंड केम टू द सरफेस, और मैं सरफेस पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड द पैडल टू द एज ऑफ द पुल। और बिल्कुल उस पर आके फिर वहाँ से पैरों के सहारे से मैं बाद में पुल के दूसरी तरफ आ जाऊँगा।
बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जैसे नीचे जा रहे थे काफ़ी धीरे धीरे जा रहे थे। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट लगभग 90 फीट से ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, लेकिन जैसे ही मैंने उस स्विमिंग पूल के निचले छोर को छुआ, मेरा ऐसा लग रहा था फेफड़े फट जाएंगे। बट वैन माई फीट हिट बॉटम आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा की और फिर से मैंने ऊपर की ओर छलांग लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉप टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, और मैंने सोचा ऐसे करूँगा तो बिल्कुल जैसे बॉल को फेंका जाता है, बॉल अंदर जाते ही सीधे फिर ऊपर आ जाती है, वैसे ही मैं भी आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आई एंड सॉ नथिंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं धीरे धीरे आ रहा था और मैंने बिल्कुल जब आंखें खोली तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, लेकिन जो पानी था, पानी उसमें मतलब हल्का सा पीलापन था। आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने अपने आँख देखा, वहाँ पर मुझे लगा कोई रस्सी भी लगी होगी तो मैं उसको पकड़ने गया, लेकिन मेरे सिर्फ हाथ पानी को ही पकड़ रहे थे। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तब मेरी आंखें और मेरे नाक पानी से बाहर तो आए लेकिन मेरा मुंह अभी बाहर नहीं आया था। आई फ्लीड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर स्वॉलोड एंड चोक, मैं बिल्कुल वहाँ तड़प सा रहा था सरफेस पे, उसकी सतह पे। मैंने पानी को घोट लिया, फिर उसके बाद से निगल लिया और फिर उसके बाद चोक, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब ठहर सा गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एट द डेड वेट्स, मैंने सोचा कि अपने पैरों को ऊपर लेकर आऊँ सही से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर तो नीचे बिल्कुल अटक से गए हैं, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ठहर से गए हैं, बिल्कुल वहीं पे स्थिर हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा फोर्स मुझे नीचे से खींच रहा है। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ पानी में ही मेरी आवाज़ थी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, मेरी दोबारा से यात्रा नीचे से फिर से मैं डूब रहा था। I stuck at the water as I went down, expending my strength as one of the nightmare flights as illustrated before. I had lost all my breath. अब क्या हुआ, जैसे ही वो पानी में फंसे मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा किया, एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एज इरेसिस्टिबल फोर्स, ऐसा लग रहा था बुरे सपने में बिल्कुल एक इरेसिस्टिबल जिसको ना टाले जा सके ऐसे फोर्स से मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मैं अपनी कहीं सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब, मेरा जो सिर था वो सुन पड़ गया। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे अब की बेहोशी हो रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे अभी भी वो स्ट्रैटेजी जो प्लान था वो याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क ऑफ द सरफेस, मैं फिर से जाऊंगा बॉटम पे, फिर से मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करके फिर सरफेस पर आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और फिर क्या होगा, मैं बिल्कुल पैरों के साथ मतलब आर्म्स के हेल्प से बिल्कुल फ्लैट मतलब उसमें, एंड थ्रैश विद माई लेग, देन आई वुड गेट टू द एंड ऑफ द पुल। वही सेम प्लान कि दोबारा पैर नीचे, फिर दोबारा से पैरों का स्ट्रेंथ से जंप करते हुए ऊपर आएंगे और फिर उसके बाद से हाथ, जब ऊपर आ जाएंगे तो हाथों के सहारे से बिल्कुल साइड के पुल की तरफ आ जाएंगे सेफ। I went down endlessly. I opened my eye, nothing but water with a yellow glow. मैं नीचे जा रहा था और मैंने जब आंखें खोली तो सिर्फ मुझे पानी दिख रहा था येलो ग्लो के साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी, एक काला पानी एक तरीके से जो मतलब नहीं दिख रहा था, मतलब अब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, लेकिन तभी एक डर सा मेरे सामने आ गया। दैट नोज अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोट नो कंट्रोल, ऐसा डर जो कुछ समझ नहीं रहा था, ऐसा डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा डर जो कोई समझ नहीं सकता था और ऐसा डर जो किसी ने कभी अनुभव ना किया हो। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टेप, मैं कहीं ना कहीं उसमें घबरा रहा था, कहीं ना कहीं मैं स्थिर हो गया था, डर गया था, रुक गया था बिल्कुल डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब तो मेरी चीख भी ऐसा लग रहा था कि जम गई है। ओनली माई हार्ट, मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरा हृदय और मेरे जो सिर पर जो नसें मतलब जो हो रहा था, दैट इज़ द वाइब्रेशन हो रहा था, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं मैं जीवित हूँ।
Okay students, so in this video that's all, and in the next part I will complete this chapter. Student, this is the line by line explanation, and during this time I hope that you will listen and watch this video very attentively. If you will have any doubt, you can ask in the comment section without any hesitation student. So I'm just covering it line by line explanation so that you can able to cover your English literature part very well in your board examination students. So thanks for watching and God bless you all.